Welcome, students of class 11th. Today we will be starting a new topic, a new chapter in your biology syllabus, that is the chapter 3, which includes the kingdom Plantae. We had already discussed about the Monera, including bacteria. We had discussed about the second kingdom, that is your Protista, the third kingdom, that is your fungi, and today we will be dealing with the kingdom Plantae. Okay, so let's begin. Before moving on to the exact details of the kingdom Plantae and its classification, we will be just looking into the basic characteristics of all the organisms which are placed under this kingdom Plantae, or rather the plant kingdom. So what are the basic characters? Let us see. First of all, we will be having that all the Plantae are multicellular, they are eukaryotic and autotrophic, means that they can make their own food by the help of photosynthesis, as they will be having chlorophyll inside them. They will be having a well defined nucleus, and hence they will be eukaryotic, and they are all multicellular organisms. Second point is that all the organisms which are included in the plant kingdom consist of a cell wall, and the cell wall will be made up of a common type of protein, that is your cellulose. Sorry, not protein, a carbohydrate, that is your cellulose. Okay, the cell wall will be made up of cellulose. And the stored food, the plants store food in the form of starch. We also know this in class 10th also we have undergone the starch test, how we can say that yes, starch is present in the leaves of the plants. So they store food in the form of starch. Next, they are photosynthetic. We had already discussed autotrophic, so they are all photosynthetic as they have chlorophyll along with certain accessory pigments which also help the primary pigment chlorophyll to absorb sunlight and carry on photosynthesis, by which they can make their own food. They are generally non-motile, and for being non-motile, they have either rhizoids, which are underground root-like structures, or they have proper roots which help the plant body to fix inside the soil and also to absorb the water and minerals. Okay, so either the plants will be having rhizoids, or they will be having proper roots which will be helping them for the fixation inside the soil as well as for absorption of water and minerals. Now, this is the most important part, and this is the basic new part which will be coming along. All the plant we will be studying, we will be generally concentrating on the life cycles. And the life cycle, each and every plant will be having two life cycles which will be occurring in a cyclic or in alternating manner. Okay, so we can say that the life cycle has two alternating phases. Now, what are the two phases? First phase, we will be telling it as the diploid phase. That means when I will say that yes, this is the diploid phase which is going on in this plant, तब हम लोग बोलेंगे कि उस प्लांट के अंदर जितने भी सेल्स होंगे वो सारे के सारे सेल्स में जितने भी आपके होंगे प्लांट सेल्स के अंदर सब के अंदर 2n न्यूक्लियस होगा, मतलब देयर विल बी अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स व्हिच विल बी प्रेजेंट. और इस डिप्लॉयड फेज को ही हम लोग और अच्छी तरह टेक्निकल टर्म देते हैं स्पोरोफाइट. क्लियर? फाइट मतलब रिलेटेड टू द प्लांट, तो प्लांट विच प्रोड्यूसेस स्पोर्स, ठीक, दैट इज योर डिप्लॉयड फेज या स्पोरोफाइटिक फेज. ठीक, तो ये स्पोरोफाइटिक फेज बोलू या डिप्लॉयड फेज बोलू, बोथ मीन्स द सेम. क्लियर? सो इट विल बी द स्पोरोफाइट विच विल प्रोड्यूस स्पोर्स, और यही स्पोर्स आपके रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली. क्लियर है? अगर मैं बात करूं हैप्लॉयड फेज, तो हैप्लॉयड फेज ऑब्वियसली एन आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे उसमें,
और इसको हम लोग टेक्निकली नाम दे सकते हैं गैमेटोफाइट. Gametes मतलब the sex organs. So the plant part which reproduces sexually by forming the gametes. जो गैमेट फॉर्म करेगा और उस गैमेट का यूनियन होके आपका फर्टिलाइजेशन होगा, तो मतलब वो सेक्सुअली आपका कैसे करके रिप्रोड्यूस कर रहा है, वो हम लोग बात करेंगे इन गैमेटोफाइटिक. तो आपको एक चीज याद रखना है, अगर मैं बोलूं स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, that means the plant containing all the cells in the sporophytic plant body will be having diploid number of chromosomes. And if I talk about the gametophytic plant body, gametophyte के अंदर जितने भी उस plant body के अंदर cells है, सब will be haploid या आपका single set of chromosome रहेगा. कोई दिक्कत? तो ये आपके दो टाइप ऑफ लाइफ साइकिल दिखाई देगा, और यही आपके एक प्लांट के अंदर ऑल्टरनेट करके होता है. कभी उसके अंदर डिप्लॉयड फेज चलता है बहुत देर के लिए, तो कभी बहुत छोटे फेज के लिए हैप्लॉयड चलेगा. किसी किसी प्लांट्स के अंदर बहुत लंबे समय तक चलेगा हैप्लॉयड फेज, और सिर्फ कम समय के लिए चलेगा डिप्लॉयड फेज. क्लियर है? अगर इसकी बात करूं तो यही चीज हम लोग थोड़ा सा देखे थे अभी किंगडम फंगी के अंदर भी, जब हम लोग उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते थे. ये सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग जो थैलस ऑफ द था, जो हाइफेई था, वो जनरली हैप्लॉयड था. क्लियर? तो एंटायर लाइफ साइकिल में डोमिनेटिंग कौन था? हैप्लॉयड फेज. क्लियर? और जब वो हैप्लॉयड फेज गैमेट्स यूनियन हो गया और यूनियाइट हो गए, बना जाइगोट, then that structure zygote is a diploid cell, so it will be coming in the diploid phase. तो अगर मैं फंगी के अंदर बात करूं, वहां पर सिर्फ जाइगोट होगा जो कि डिप्लॉयड है, बाकी जितने भी उस बॉडी के अंदर आपके सेल्स है, सब के सब हैप्लॉयड होते हैं. क्लियर है? तो इसके अंदर डोमिनेटिंग फेज जो होगा वो हैप्लॉयड, देयरफॉर उसको हम लोग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी बोल सकते हैं. क्लियर? तो आगे देखेंगे, ये दोनों नाम आप बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा, डिप्लॉयड फेज एंड हैप्लॉयड फेज. क्लियर? नाउ किंगडम प्लांट क्या क्या उसके अंदर होते हैं, तो एक बेसिक क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं ना. ये अगर हमारा प्लांट किंगडम है, तो प्लांट किंगडम को जनरली हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहला जो आपका होगा दैट इज थैलोफाइटा. क्लियर? थैलो, देखो नाम ही आया है, थैलस लाइक बॉडी. एंड व्हाट डू यू मीन बाय थैलस? थैलस का मतलब है अ मास ऑफ सेल्स, अनडिफरेंशिएटिंग सेल्स, जो सेल्स आपके डिफरेंशिएट नहीं हो पाया इनटू अनदर काइंड ऑफ लाइक टिश्यूज और एनी काइंड ऑफ अदर काइंड ऑफ आपके मतलब स्ट्रक्चर में वो डेवलप नहीं हुआ. ठीक है? जिसका आपका कोई भी, हम देख के ना तो मुझे कोई शूट नजर आएगा, ना तो रूट नजर आएगा, ना ही आपके कुछ उसमें अंदर स्टेम नजर आएगा, तो उसको हम लोग नाम देंगे थैलस लाइक बॉडी स्ट्रक्चर. और ये थैलस लाइक बॉडी स्ट्रक्चर को ही हम लोग नाम देते हैं थैलोफाइटा. क्लियर है? दे आर जनरली एक्वेटिक. ठीक? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट द ब्रायोफाइटा. क्लियर? ब्रायोफाइटा को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलेंगे, बिकॉज दे विल बी फर्स्ट टू सेटल ऑन द टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड, मतलब लैंड के ऊपर रहने वाले सबसे पहला प्लांट, बट उनको वाटर की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ देयर गैमेट्स. ठीक है? इनके अंदर कोई भी जाइलम या फ्लोएम बंडल्स नहीं होते हैं, और इसीलिए इनको हम लोग नॉन वास्कुलर प्लांट्स भी बोलते हैं. क्लियर? एंड थर्ड वी विल बी हैविंग द ट्रैकेओफाइटा. क्लियर? ट्रैकेओ मतलब आपके प्रेजेंस ऑफ द वास्कुलर बंडल्स. और वास्कुलर बंडल्स क्या होते हैं ना? वही जाइलम और फ्लोएम. जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को लेके जाएगा सॉइल से ऊपर तक, और जो फ्लोएम होगा वो खाना जो बनेगा इन द फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, उसको चारों तरफ फैलाएगा. तो अगर ऐसे जाइलम और फ्लोएम या वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होता है, तो उसको हम लोग नाम देंगे ट्रैकेओफाइटा. अगर नहीं होता है तो नाम देंगे ब्रायोफाइटा या नॉन वास्कुलर प्लांट्स. क्लियर? फर्दर अगर हम लोग देखेंगे, थैलोफाइटा को हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड योर रेड एल्गी. क्लियर? ग्रीन एल्गी को हम लोग क्लोरोफाइसी बोलते हैं, ब्राउन एल्गी को फायोफाइसी, और रेड एल्गी को बोलते हैं हम लोग रोडोफाइसी. चलिए एक बार करके हम लोग देखते हैं कि क्या होते हैं ये एल्गी. ठीक? नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करेंगे इन द क्लासिफिकेशन, तो हमें क्या चीज समझ में आएगा देखते हैं.
Moving on to the next slide, let us see another type of classification of this kingdom, planting. ना यहां पर देखिए यही स्ट्रक्चर आपको क्लास 9th में जब डाइवर्सिटी पढ़े थे तब भी यही आपके प्लांट किंगडम को डिफरेंशिएट कर रहा था ना। यहां पर प्लांट किंगडम को सबसे पहले जो हम लोग फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, उस फर्स्ट लेवल के अंदर हमारा ये हमें समझ में आता है कि प्लांट को जो है प्रेजेंस ऑफ अ वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है या नहीं है, उसके ऊपर बेस करके डिफरेंशिएट किया गया। तो जिन प्लांट्स के अंदर कोई भी हम लोग उसको अलग से बॉडी पार्ट्स डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, जिनके अंदर थैलस लाइक बॉडी होगा, उनको हम लोग रख देंगे किसके अंदर, थैलोफाइटा के अंदर। क्लियर? अब रह क्या गया, ऑल दोज प्लांट्स जिनके अंदर हम लोग डिफरेंशिएट करके बोल सकते हैं कि यस दिस बॉडी पार्ट बिकम्स द रूट, this becomes the shoot and this is your stem and this is your leaves। ऐसे करके अगर हम लोग अलग अलग पार्ट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो उसके अंदर हम लोग अगेन द सेकेंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन होगा, द नेक्स्ट लेवल, दैट इज क्या उसके अंदर स्पेशल टिश्यूज है फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड। अगर है तो वो हो जाएगा वास्कुलर टिश्यू, तो अगर जिसके अंदर नहीं होता है तो विदाउट द वस्कुलर टिश्यू। क्लियर? तो अगर ब्रायोफाइट्स को डिफाइन करना है, ब्रायोफाइट्स थैलोफाइटा से इवोल्यूशन होके बना है। क्लियर? थैलोफाइट्स के अंदर पूरा थैलस लाइक है, कोई भी डिफरेंशिएटिंग नहीं हो सकता है बॉडी पार्ट्स, बट ब्रायोफाइटा के अंदर बॉडी पार्ट्स तो मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं, मैं देख के बोल सकता हूं कि यस दिस कैन बी योर रूट, दिस विल बी योर स्टेम एंड दिस विल बी योर द लीफ। मतलब इसके अंदर ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ तो नहीं होगा, तो रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक ऑर्गन आपके होंगे, बट इसके अंदर कोई भी वास्कुलर टिश्यूज नहीं होंगे फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। क्लियर? अब हमारे पास आ जाता है विथ वास्कुलर टिश्यू, मतलब जिसके अंदर वास्कुलर बंडल्स होगा, प्रॉपर जाइलम एंड फ्लोएम होंगे। उसके अंदर हम लोग अगेन दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, अबाउट द क्रिप्टोगैम्स एंड द फेनोरोगैम्स। क्लियर? टेरिडोफाइटा जो होगा नेक्स्ट आपका, दे विल बी नॉट सीड प्रोड्यूसिंग। तो हमारा जो थर्ड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है, क्या वो प्लांट सीड प्रोड्यूस कर सकता है या सीड नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। क्लियर? तो जो टेरिडोफाइटा हो जाएगा, दे विल बी वास्कुलर प्लांट्स जो ट्रैकियोफाइट्स के अंदर आएगा, हैविंग आपके differentiated body part, but they do not produce seeds, and hence this kingdom comes, this आपके सुपर डिवीजन comes under the Pteridophyta। क्लियर? इसको हम लोग डिवीजन नाम देंगे। यहां पे फाइलम नहीं होता है एनिमल किंगडम के जैसे, तो यहां पे आपके किंगडम, उसके बाद आ जाएगा द डिवीजन। क्लियर? नेक्स्ट, अगर वो सीड प्रोड्यूस कर सकता है तो उसको हम लोग नाम देंगे फेनेरोगैम्स। क्लियर? और सीड प्रोड्यूसिंग अगर करेगा तो वो सीड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या वो सीड नेकेड होगा या किसी स्ट्रक्चर से ढका हुआ होगा, जैसे कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर नजर आता है या फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर नजर आता है। जो सीड होगा वो एक फ्रूट के अंदर आपका रहेगा, बाहर की तरफ सीड नहीं होगा। क्लियर? तो ये जो जिम्नोस्पर्म्स होगा, इसके अंदर नेकेड सीड्स है, मतलब दे आर नॉन फ्लावरिंग। सीड्स तो बना सकते हैं बट नॉन फ्लावरिंग। क्लियर? ठीक है? तो ऑब्वियसली अगर फ्लावर नहीं हुआ तो फ्रूट डेवलपमेंट भी नहीं होगा। ठीक? तो ओनली दे विल बी बियरिंग द सीड्स। ठीक? एंजियोस्पर्म्स के अंदर अगर बात करूं, सबसे हाईली एडवांस्ड जो आपके प्लांट किंगडम के अंदर होते हैं, तो ये एंजियोस्पर्म्स हो जाएगा हमारा फ्लावरिंग प्लांट्स। सो दे आर द ओनली प्लांट्स टू हैव द फ्लावर स्ट्रक्चर, फ्लावर एज देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और ये फ्लावर होगा जिसके अंदर ओवरी होगा, और इस ओवरी के अंदर होगा ओव्यूल्स। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी बन जाएगा फ्रूट और ओव्यूल्स बन जाएगा सीड्स। क्लियर? ठीक है? तो दीज आर द ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स इन द एंटायर प्लांट किंगडम। ये सीड्स को हम लोग दो हिस्सों में अगेन डिवाइड कर सकते हैं। अगर सीड के अंदर सिर्फ एक ही सीड लीव होता है, या मतलब वन कॉटिलिडन होता है, तो उसको बोलते हैं मोनोकॉट्स। अगर दो कॉटिलिडन होगा उसको हम लोग नाम देंगे डाइकॉट्स। मोनोकॉट का बेस्ट एग्जांपल है राइस, द पैडी, जितने भी सीरियल्स हम लोग लेते हैं, ठीक, मेज,
This will be all be having one cotyledon and hence they are all monocots. टू cotyledons अगर मैं बोलूंगा, जितने भी हम लोग दाल लेते हैं, ठीक, दाल इन द सेंस पल्सेस, जैसे कि बीन हो गया, राजमा हो गया, पीज हो गया, ये सारे के सारे हो जाएंगे आपके कंसिस्टिंग ऑफ टू cotyledons and hence they will be all considering to be dicots. कोई दिक्कत? क्लियर है? इसके बाद एक अनदर वे ऑफ प्लांट किंग मतलब क्लासिफिकेशन हुआ था, दैट वाज डन बाय एकलर. लेट अस हैव अ लुक. सो ये जो आपके है, इसको हम लोग एकलर्स क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम भी बोल सकते हैं. आप अगर यहां पे मैंने मेंशन नहीं किया है, तो आप अगर लिखना चाहते हो तो इसको पॉज करो और पॉज करके लिख लीजिए एकलर, EICHLER. ठीक है? तो दिस इज ऑल्सो नोन एज, दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो जनरली नोन एज एकलर्स क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट किंगडम. ठीक, तो यहां पर देखिए उन्होंने क्या बोला था ना, जो प्लांट्स है दैट इज योर किंगडम, इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द सब किंगडम्स. एक तो क्रिप्टोगैमी और एक हो जाएगा फेनेरोगैमी. क्लियर? क्रिप्टोगैमी मतलब जिनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होगा वो हिडन होंगे. दे विल बी हैविंग हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दिखाई नहीं देगा. और फेनेरोगैम्स होगा जिसके अंदर वेल एक्सपोज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिखाई देगा. हमें देख के ही पता चलेगा कि यस, दिस इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड दिस विल बी द मेल एंड दिस विल बी द फीमेल ऑर्गन. क्लियर? तो क्रिप्टोगैमी जो है, जिसके अंदर हिडन सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, उसको अगेन वो उन्होंने डिवाइड किया है इनटू 5 डिविजन्स, एक्चुअली 4 डिविजन्स, दैट इज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड फेनेरोगैमी के अंदर हो जाएगा स्पर्मेटोफाइटा. क्लियर? अगेन थैलोफाइटा को सब डिवाइड किया था एल्गी और फंगी के अंदर. अब तो हम लोग फंगी को एक अलग ही किंगडम के अंदर पढ़ते हैं, बट एकलर ने फंगी को भी आपके प्लांट एक किंगडम के अंदर थैलोफाइट्स के अंदर डाल दिया था. क्लियर? बट टुडे वी डील फंगी अलग से. ठीक है? वी कंसीडर फंगी टू बी द थर्ड किंगडम. क्लियर? अकॉर्डिंग टू R.H. विटेकर. तो थैलोफाइटा के अंदर हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में? सिर्फ एल्गी के बारे में पढ़ना है. दैट इज द ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड योर रेड एल्गी. क्रिप्टोगैमी के अंदर ही हो जाएगा आपका नॉन वास्कुलर प्लांट्स, दैट इज ब्रायोफाइट्स, एंड द वास्कुलर प्लांट्स, दैट इज योर टेरिडोफाइट. क्लियर? और फेनेरोगैम जिनके अंदर वेल एक्सपोज्ड आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे, उसी को हम लोग नाम देते हैं स्पर्मेटोफाइटा. और इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं अगेन दो सब डिविजन्स के अंदर, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. क्लियर? ठीक, तो phanerogams considering of the gymnosperm, angiosperm, cryptogamy considers the thallophyte, bryophyte and the pteridophyte. Gymnosperm considering the naked seed producing plants, or angiosperm the seed which will be developed inside the fruit. Clear? Or the flowering plants. अब कुछ बेसिक डिफरेंसेस हम लोग देखेंगे बिटवीन क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी. तो वही सेम पहला पॉइंट कि दे हैव इनकॉन्स्पिशियस और हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. इनके जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो आसानी से दिखाई नहीं देगा बाहर से. ठीक? और फेनेरोगैम्स के अंदर होता है कि इनके अंदर वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या ऑर्गन्स बहुत अच्छी तरह नजर हो सकता है, मतलब डिफरेंशिएटिंग नजर हो सकता है. क्लियर? नेक्स्ट, क्रिप्टोगैम्स की अगर बात करेंगे तो इनके अंदर नेकेड एम्ब्रायोज होता है, या इसको नॉन एम्ब्रायोफाइटा भी बोला जाता है कभी कभार. ठीक है? तो एम्ब्रायो तो फॉर्म होगा कुछ में, और इसके एम्ब्रायोज जो होगा उसको जनरली हम लोग स्पोर्स नाम देंगे. क्लियर है? ठीक, यहां पर ऑब्वियसली हायर प्लांट्स है. जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर कंसीडर्ड टू बी हायर प्लांट्स जिनके अंदर सीड्स होते हैं. क्लियर? नाउ क्रिप्टोगैमी को हम लोग और क्या नाम दे सकते हैं? दे कैन बी कॉमनली कॉल्ड एज फ्लावरलेस और सीडलेस प्लांट्स, बिकॉज फ्लावरलेस इज योर जिम्नोस्पर्म ऑल्सो. सो इन्होंने हमें क्रिप्टोगैमी का मतलब है दे विल बी ऑल सीडलेस, डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, दे प्रोड्यूस स्पोर्स. और फेनेरोगैम्स को हम लोग सीड बियरिंग प्लांट्स भी बोल सकते हैं, और इसीलिए इसको स्पर्मेटोफाइटा भी बोला जाता है. तो क्रिप्टोगैमी के अंदर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा हो जाएगा, जबकि फेनेरोगैम्स के अंदर जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स हो जाएंगे. कोई दिक्कत? क्लियर? तो ये आप अपने कॉपी में भी ऐसे करके लिख लीजिएगा. ठीक, डिफरेंस, और इसको याद करिएगा. एंड नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द क्रिप्टोगैमी एंड द फेनेरोगैमी.
तो लास्ट अब ये जो क्रिप्टोगैमी वर्सेस फेनोरोगैमी है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। क्लियर? थैलोफाइटा जैसे कि हम लोग बातचीत कर रहे थे कि प्लांट बॉडी जो होगा वो थैलस लाइक होगा। क्लियर? जिसके अंदर एक अनडिफरेंशिएटेड क्लस्टर ऑफ सेल्स होंगे और जहां से हमें कोई भी डिफरेंशिएटिंग स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा कि ये आपके बनते हैं रूट, स्टेम, लीव्स, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा। दिस इज योर थैलोफाइट। ब्रायोफाइट के अंदर आपके थैलस से थोड़ा सा तो इवॉल्व होके कुछ होगा, बट इसके अंदर आपको याद रखना है डिफरेंशिएटिंग स्ट्रक्चर तो होगा, देख के हमें अलग अलग स्ट्रक्चर पता चलेगा, बट जो स्ट्रक्चर है दे आर नॉट ट्रू रूट्स बिकॉज एंड दे आर नॉट ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स। ठीक है? तो इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक ऑर्गन्स दिखाई देता है। क्लियर? टेरिडोफाइट्स हो जाएगा आपके क्रिप्टोगैम्स के अंदर, दैट इज दे पोजेस द ट्रू रूट्स, द ट्रू स्टेम एंड द ट्रू लीव्स। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट, थैलोफाइटा के अंदर कोई भी स्पेशलाइज्ड सिस्टम फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर नहीं होता है, एज इसको जरूरत भी नहीं होता है, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है बिकॉज दे आर जनरली एक्वेटिक। क्लियर? ब्रायोफाइट्स के अंदर ट्रू वास्कुलर सिस्टम एब्सेंट है। इनके अंदर रूट लाइक राइजॉइड्स होते हैं और इस राइजॉइड से वो एब्जॉर्ब कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है वाटर। क्लियर? ठीक। दैट मीन्स दे आर नॉन वास्कुलर सिंस दे डू नॉट हैव अ ट्रू वास्कुलर सिस्टम। अच्छा, टेरिडोफाइट्स के अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि इसके अंदर वास्कुलर सिस्टम होंगे, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम इसके अंदर होंगे और इसीलिए इसको हम लोग नाम देते हैं ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट्स टेरिडोफाइटा से शुरू होता है एंड इट आल्सो इंक्लूड्स द फेनेरोगैम्स जिसके अंदर आता है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। क्लियर है? थैलोफाइटा के अंदर कौन से चीज की स्टडी होता है ना, जितने भी एल्गी होगा, जैसी अगर मैं ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ दो बिकॉज ब्लू ग्रीन एल्गी विल बी प्रोकैरियोटिक, वो तो मोनेरा में आता है। बाकी जैसे आपका ग्रीन एल्गी, जैसे कि आपका रेड एल्गी, द ब्राउन एल्गी, जैसे जैसे जिसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं अलोंग विथ क्लोरोफिल, उसी टाइप के आपके सारे एल्गीज रह जाएगा थैलोफाइट्स के अंदर। ब्रायोफाइट्स के अंदर होता है थैलस लाइक लीवरवर्ट्स और थोड़ा बहुत रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर मॉसल्स। ठीक है? तो हम लोग यहां पे पढ़ेंगे अबाउट द लीवरवर्ट्स, ठीक, और द मॉसल्स। टेरिडोफाइट्स के अंदर हम लोग जनरली पढ़ेंगे अबाउट द फर्न्स। क्लियर? तो ये हमें बहुत अच्छी तरह याद रखना है, फर्न्स के बारे में स्टडी भी करना है और यहां पर ही हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे अबाउट द एल्गी। तो यहां तक आप पूरा अच्छी तरह लिख के और उसको याद कीजिएगा, जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे तब आपको वीडियो में शेयर करूंगा जहां पे हम लोग थैलोफाइटा डिवीजन शुरू करेंगे। ठीक? तो टिल देन, थैंक यू।